A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed lots of the theoretical as well as the practical concepts related to the chapter number 7, that is an issue of share. In this chapter, we almost complete total concepts, all the concepts related to the issue of share, forfeiture of the share, reissue of the share, as well as the preparation of balance sheet in case of the forfeiture and reissue of the share. So now today we will move to the last type of the question in this chapter, that is an oversubscription and forfeiture of share when share are issued at premium. यानी बेसिकली क्वेश्चन जो होगा वो इस बेसिस पे होगा कि शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू होगा और शेयर ओवर सब्सक्राइब भी होगा, यानी वहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट भी होगा। उसके साथ ही साथ हमें ये भी डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि एरियर होगा अलॉटमेंट पे, कुछ पैसा प्रीमियम का मिलेगा, कुछ पैसा प्रीमियम का नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ हमें शेयर को फॉरफिट करना है, रीइश्यू भी करना है। So without creating delay, let's start today's topic related to the chapter number 7, and it is the last topic of this chapter, that is an over subscription and forfeiture of share. Over subscription and forfeiture of share issued at premium. Issued at premium. So आज इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लासेस में एज वेल एज हम लोगों ने वीडियोस में, इससे पहला जो टॉपिक था दैट इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड 52 इज अ होमवर्क फॉर यू। सो टुडे वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस related to the over subscription and forfeiture of share issued at premium. Basically you know very well कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उससे कुछ ज़्यादा शेयर भी क्या मिल जाता है, अप्लाइड होता है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एंड यू नो वेरी वेल इन केस ऑफ द प्रोराटा अलॉटमेंट एक्सेस मनी किसके साथ एडजस्ट होती है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होती है। और अगर अलॉटमेंट पे एरियर होता है तो उस सिचुएशन में वी हैव टू find out the calls in arrear on allotment, and after calculating the amount of calls in arrear on allotment हमें ये भी find out करना ज़रूरी है कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के रिस्पेक्ट्स में हमें कितना अमाउंट कॉल्स इन एरियर के रूप में फाइंड आउट करना है, एज वेल एज हमें अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी हैव टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। द क्वेश्चन नंबर 55 which are related to the over subscription and forfeiture of share issued at premium. So let's solve this question. Question number 55 which are related to the over subscription and forfeiture of share which are issued at premium. It means more than the face value. The question number 55 says that a company issued 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of 1 per share. On application 3, on allotment 4, including premium first call 2 and second and final call 2. So in the question number 55, the company issued 10,000 shares at the rate of 10 rupees with a premium of rupees 1. So total issue price will be 11. On application 3, on which application is 3, on allotment
इज ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इसमें ₹1 प्रीमियम का होगा तो ₹3 शेयर का होगा। फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल of ₹2. So total price will be a 437 to 9 to 11. 11 हो गया, out of which ₹1 is premium, so face value of the share is 10. After that the information is given, application were received for 20,000 share. Application आया हमें 20,000 shares के लिए, so it is an applied and here it is allotted. So applied application received for 20,000 share, where share are issued for 10,000 only, because company cannot allot more than the issued share. So application received for 20,000, application for 5,000 shares were rejected. 5,000 शेयर जिसने अप्लाई किया उसको हम लोगों ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। An allotment was made proportionately to the remaining applicants. जो remaining बचे, कितने बचे? 15,000, उनको कंपनी ने कितना दे दिया? 10,000। So ये सिनेरियो बचा है, यानी ये 15,000 वालों को 10,000 दिया गया, इनका रिजेक्ट कर दिया गया। So you know very well, जिनको हम रिजेक्ट कर देते हैं उनके एक्सेस मनी को हम लोग क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं थ्रू बैंक। So 5,000 into 3, 15,000 रुपीज रिटर्न हो जाएगी, और 15,000 वाले को 10,000 दिया गया, तो एक्सेस कितना बचा? 5,000 शेयर पे ₹3, 15,000, इसको हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। इसको हमें रिटर्न करना है, इसको हमें एडजस्ट करना है। यहाँ तक पहले हम लोग जर्नल एंट्री भी पास कर रहे हैं। पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इनके हम यहाँ से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से बढ़ेंगे, वी रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ स्पेस, तो उसके लिए हमें एंट्रीज को एक जगह सिस्टमैटिक करना ज़रूरी है। सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन रिसीव फॉर ₹4। सो फर्स्ट एंट्री दैट इज एन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20,000 शेयर फॉर ₹3, दैट इज एन 60,000। एंड सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन डेबिट to share capital, to share allotment and to bank। बैंक मतलब पैसा रिटर्न करना है। टोटल एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 60,000 अमाउंट, जिसमें से हम कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? 10,000 into 3 एक्चुअल एप्लीकेशन में। एक्चुअल एप्लीकेशन में 10,000 into 3 30,000। 15,000 हमें अलॉट करना है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है ड्यू टू द प्रोराटा अलॉटमेंट, और ये जो 15,000 बच गया इसे हमें रिटर्न करना है टू बैंक। आफ्टर दैट हम जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो क्या हुआ, कैसे हमें उसे एडजस्ट करना है, उसके बारे में क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन है। द क्वेश्चन सेज दैट द डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल्स एंड ऑल द मनी विल रिसीव। डायरेक्टर ने सारा कॉल्स किया, सारा पैसा मिला, एक्सेप्ट द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स which were subsequently forfeited। कह रहा है सारा पैसा मिल गया, सिर्फ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल को छोड़ के कितने शेयर्स पे? 400 शेयर्स। फिर उनको फॉरफीट किया गया, उसमें से 300 शेयर इशू किया गया ₹15 पे, यानी मोर देन द फेस वैल्यू, दैट इज एन प्रीमियम। अब थोड़ा सा यहाँ क्लाइमेक्स, और आपको पता है कि 400 शेयर पे एरियर है, सो 400 इज अ अलॉटेड शेयर। और यू नो वेरी वेल यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है, एक ग्रुप तो नील अलॉटमेंट का है, तो उस ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करेगा। जो 400 शेयर होल्डर्स, 400 शेयर्स हैं जिन पे एरियर हुआ है, वो किस ग्रुप में होगा? इस ग्रुप में होगा, वो इस ग्रुप से बिलोंग करेगा। यानी इस ग्रुप के शेयर होल्डर्स का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट है, तो उसका भी तो पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। तो हम ये नहीं कह सकते कि अलॉटमेंट में पूरा पैसा उसने क्या किया, नहीं दिया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बात को समझो, एक पर्सन है जिसके पास 400 शेयर है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और फाइनल कॉल नहीं दिया।
ठीक है। अब सवाल उठता है कि 400 शेयर से उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एरियर अमाउंट। 400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल की मनी 2 एंड फाइनल कॉल 400 पे 2, 800 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का एरियर है और 800 रुपीज़ फाइनल कॉल का एरियर तो निकल गया। लेकिन अलॉटमेंट में जो एरियर है वो डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस बंदे का भी पैसा ऑलरेडी किस पे एडजस्टेड है, अलॉटमेंट पे। यानी अगर उसे अप्लाइड हुआ है 400 तो उसने मांगा तो ज़्यादा हुआ। जैसे आप इस कैटेगरी में देखिए 15,000 मांगने पे कंपनी के 10,000 शेयर अलॉट हुए थे, तो जिसने 400 जिसको अलॉट हुआ उसको ज़्यादा अप्लाई किया गया। तो सिचुएशन में हमें निकालना पड़ेगा अप्लाइड शेयर। क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड शेयर। कैसे निकलेगा अप्लाइड शेयर? अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल अप्लाइड शेयर डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड शेयर। तो अप्लाइड शेयर कैसे निकलेगा? 15,000 अप्लाई किया गया 10,000 के रिस्पेक्ट में, तो 400 शेयर के रिस्पेक्ट में कितना किया होगा? सो ये आएगा आपका 5, 3, 2, 600 शेयर। सो उस बंदे ने 600 शेयर्स क्या किया होगा? अप्लाई किया। सो यहाँ पे हम निकालेंगे अलॉटमेंट पे कितना एरियर बनेगा। कैसे निकलेगा? इसके लिए मैंने आपको स्टेप समझाया था। सबसे पहले एक्चुअल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 600 शेयर पे 3 रुपीज़ 1800, जिसमें एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी है? 300 इंटू 4, क्योंकि उसको अलॉट हुआ था 400, 1200। एक्सेस पैसा किस पे एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे? 600। यानी उसने एप्लीकेशन मनी कितना मिला? 1800 कंपनी को, जबकि उसका एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितना बनता है? 1200 रुपये बनता है। तो एक्सेस पैसा कितना है? 600 रुपये, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट है। अब अलॉटमेंट पे कितना ड्यू करेंगे उससे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 4 रुपीज़ पे, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, याद रखिएगा। तो 400 इंटू 6 2400। अब यहाँ पर बचा 1800 रुपये, जो विच आर एरियर ऑन पॉसिबल एरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हम टोटल मांगते कंपनी से, उस बंदे से कितना मांगते? 400 पे 6 रुपीज़ कॉल्ड अप करते, जाहिर सी बात है। तो हम उससे मांगते 400 रुपीज़ के 6 रुपया 2400, वो ऑलरेडी उसने एक्सेस दिया हुआ है ऑन एप्लीकेशन इज 600 रुपीज़। सो 1800 क्या होगा? एरियर होगा ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे एरियर निकालना। अब हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर्स हैं? 10,000। प्रीमियम कितना है? 1। सो 10,000 एंड शेयर की वैल्यू कितनी है? 30,000। टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी है? 40,000। उसके बाद हम रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट कितने से ड्यू हुआ था? 40,000 से, जिसमें से कितना एक्सेस मनी एडजस्ट हो चुका है? 15,000। यानी कि हमें अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहिए था 25,000। उसमें से एरियर भी कितना है हमारा? पॉलिसी में बन गया 1800 रुपये, ठीक है। माइनस करके लिख लो 25,000 माइनस 22,200, 23,000। So this is an amount received on allotment. देख रहे हो आप लोग कितना बड़ा क्वेश्चन है। अभी आपने फर्स्ट कॉल पे एरियर किया, अरे अलॉटमेंट पे एरियर किया, अभी आपको फर्स्ट कॉल पे एरियर करना है, देन फाइनल कॉल पे एरियर करना है, उसके बाद फॉरफीट करना है। ये अलॉटमेंट का एरियर निकालना इज अ वेरी स्पेसिफिक स्टेप फॉर अस, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये अगर ये सही हो गया तो इस पर तो अपना पैसा एडजस्ट ही नहीं है, तो इस पर ज़्यादा मैटर ही नहीं करता। मैटर कहाँ करता है कि यहाँ आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या हुआ है? यूटिलाइज हुआ है ऑन अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट जब आप ड्यू करोगे और अलॉटमेंट पे एरियर है, तो टोटल एरियर अगर एडजस्ट नहीं होता तो कितना होता? 2400। लेकिन ऑलरेडी उसने 600 रुपये एप्लीकेशन पे ही दे दिया अलॉटमेंट का, 1800।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं फर्स्ट कॉल का एरिया और फाइनल कॉल का एरिया। फर्स्ट कॉल का एरिया और फाइनल कॉल का एरिया तो आपके सामने ही 800 तो फटाफट निकल जाएगा। सो फर्स्ट कॉल का एरिया विल बी उसके लिए आप पहले फर्स्ट वर्ड ड्यू करिए, एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का वैल्यू है 20,000 एंड रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा है 20,000। एरियर अमाउंट कितनी होगी, 400 शेयर इंटू 2 800, 19,200 इज अमाउंट रिसीव अगेंस्ट शेयर फर्स्ट कॉल। फिर शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, 10,000 इंटू व्हाट 20,000। फिर हम पैसा रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 20,000। एरियर अमाउंट इज व्हाट, एरियर कितना होगा आपका, फाइनल कॉल पे भी 800 टू 2 रुपीज से ही है 19,000। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का आपने एरियर आपने ड्यू किया और उस पर जो एरियर था वो आपने बुक कर लिया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एन, अब हमें फॉरफीट करना। अब हम जब फॉरफीट करेंगे सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना अमाउंट मिला और कितना पैसा नहीं मिला। सो यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन here it is a biggest thing is that कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम पे शेयर इशू है और प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि एरियर कहाँ पे है, अलॉटमेंट पे। एक बात समझ लीजिए, हमेशा जब भी हम किसी शेयर को फॉरफीट करते हैं सबसे पहले सोचते हैं कि शेयर किस पे इशू है, पार पे कि प्रीमियम पे। एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया, फिर दूसरा प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला। तो यहाँ दोनों ही केस आपको अप्लाई करना है। पहले देखना है शेयर इशू किस पे, पार पे कि प्रीमियम पे, प्रीमियम पे। फिर ये देखना है प्रीमियम पे पैसा मिला है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है। कैसे कह रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला। इसीलिए जब आप एंट्री नंबर 9 यानी फॉरफीचर करेंगे शेयर का 400 शेयर्स का, तो इनकी करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अमाउंट कितना लिखेंगे, शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे कितना शेयर आपने कितना पैसा मांगा था, 400 शेयर 10 रुपीज 400 शेयर रुपीज में आपने मांगा था 10 रुपीज यानी 4,000। प्रीमियम का कितना मांगा था, 1 रुपये। एरियर के सामने क्या लिखेंगे, टोटल एरियर। अलॉटमेंट पे कितना एरियर था, 1800। फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर था, 800। फाइनल कॉल पे कितना एरियर था, 800। सो टोटल एरियर इज 3,400। So 4,400 में 3,400 is area, so amount received on as a share forfeiture is 1,000. यानी share forfeiture account में कितना होगा, only 1,000. Am I correct? Yes. कैसे कह रहा हूँ मैं सही हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो फॉरफीचर अमाउंट सिर्फ 1,000 आ रही है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 400 पे हमने 10 रुपीज़ मांगा, 400 शेयर ही फॉरफीट करना है। उस पर अभी तक हमने कितना मांगा, 10 रुपीज़। तो 400 एंड 4,000। उस पर प्रीमियम अभी तक कितना ड्यू हुआ है, 400 इंटू 1 रुपीज़ का प्रीमियम है। एरियर कितना है, फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है, फर्स्ट कॉल पे हमारा एरियर है, सॉरी अलॉटमेंट पे कितना एरियर है, 1800। फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है, 800 एंड फाइनल कॉल पे कितना एरियर है। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, ये आएगा आपका 4,400 माइनस 3,400, 1,800 1,600, 3,400 4,400। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज वाइल वी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ चीज़ें अर्थमेटिकल इनएक्यूरेट हो जाती हैं। वो ये कि यहाँ पर हम लोगों ने कॉस्ट इन एरिया और अलॉटमेंट जो दिखाया 1800, ये 1800 नहीं होगा, ये 1000 होगा। कैसे होगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसलिए 1000 होगा क्योंकि अगर हम आपसे ये कहें कि 400 शेयर पे अप्लाइड शेयर कितना आया था, 400 शेयर पे अप्लाइड आया था 600 और अलॉटेड कितना है 400, यानी बंदे ने 600 शेयर मांगा था तब जाकर इसको 400 शेयर मिला था। सो जो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कितना आएगा 200 इंटू 3 600। और जब उससे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो कितने से करेंगे 400 इंटू 4 1600 रुपये से। अब 1600 रुपये उसका अलॉटमेंट पे ड्यू होगा, जबकि उसने पे कितना कर दिया 600, तो उसका एरियर कितना होगा सिर्फ 1000 ही आएगा। तो यहाँ छोटा सा मिस्टेक यही हुआ है कि एरियर जो हम लोगों ने अलॉटमेंट पे 1800 दिखाया वो 1800 नहीं होगा, वो कितना होगा 1000 होगा। उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1000 एरियर अलॉटमेंट पे, 800 एरियर फर्स्ट कॉल पे और 800 एरियर फाइनल कॉल पे। तो ये टोटल एरियर हो जाएगा 2600 आउट ऑफ 4400। 4400 में 2600 क्या है एरियर है, सो बचा कितना 1800। सो 1800 विल बी टेकन एज अ अमाउंट रिसीव्ड बाय स्पेसिफिक शेयर होल्डर जिसका शेयर को हम फॉरफीट कर रहे हैं। फॉरफीट करने के बाद इसमें से सारे शेयर्स को नहीं, सिर्फ 300 शेयर्स को हम लोगों ने क्या किया है रीइशू कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और किस पे इशू किया गया प्रीमियम पे, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 400 में से कितने शेयर 300, एक शेयर का दाम है 10 रुपये और रीइशू कितने पे किया गया 15, 4500, तो 1500 रुपये हो गया आपका प्रीमियम। अब हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ कंडीशन क्या है कि जब हमने जितना शेयर प्रॉफिट किया है उससे ज़्यादा शेयर हम लोगों ने क्या किया, उससे कम शेयर क्या किया रीइशू किया। तो यहाँ वही फॉर्मूला यूज होगा, यू नो अबाउट द फॉर्मूला। यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया 400 शेयर और जबकि रीइशू कितना कर रही है 300 शेयर रीइशू कर रही है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा ना। फॉर्मूला क्या होगा टोटल फॉरफीचर्ड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फॉरफीटेड शेयर इनटू रीइशू शेयर माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ रीइशू। सो यहाँ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे, टोटल फॉरफीटेड अमाउंट कितना है 1800, टोटल फॉरफीटेड शेयर कितना है 400, जबकि रीइशू कितना हुआ 300। इसका मतलब 400 शेयर पे अगर हमें 1800 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 300 शेयर पे कितना होगा। और फिर उसके बाद पता है ना अमाउंट यूटिलाइज निकालते हैं हम लोग। अमाउंट यूटिलाइज कितना है भाई रीइशू किस पे हुआ है प्रीमियम पे, तो हमने रीइशू के टाइम कोई पैसा यूटिलाइज किया ही नहीं, सीधे सीधे सॉल्व कर लो। यह आपका आएगा 300 पे प्रोपोर्शनेट 1350, यानी 1350 अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व दैट इज इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1350. So this is all about the question number 55 which are related to the oversubscription and forfeiture of share which are issued at premium and the premium amount is not received. तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। पहले ओवर सब्सक्रिप्शन है, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद उसमें प्रोराटा अलॉटमेंट है, फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने एडजस्ट किया विथ अलॉटमेंट, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस टॉपिक में सीखा कि अगर अलॉटमेंट पे एरियर हो जाएगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस शेयर होल्डर्स का एरियर अमाउंट। फिर उसमें बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब प्रीमियम नहीं दिया, यानी जब हम फॉरफीट करेंगे तो ये एज्यूम करके करेंगे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। फिर रीइशू है प्रीमियम पे, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन है कि यहाँ पे फॉरफीट जितना हुआ उससे कम रीइशू हुआ। सो ये पूरा नॉर्मली जो क्वेश्चन है ये हर एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट मिक्स्ड हैं। जैसे मिक्स वेज आप लोग खाते हैं वैसे ये शेयर का मिक्स्ड क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो लेट्स वी मूव टू द one more question which are asking by your side
and it is a doubt question from your side, that is in question number 51. So please listen it very carefully. Prayuj Limited forfeited 2000 share of 10 each, fully called up, on which they had received only 14,000. Out of forfeited share, 50 were received, reissued at for 9 per share, fully paid up. Pass necessary journal entries for forfeiture and reissue of share. Also prepare share forfeiture account. देखो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में. आप लोग बस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हवा बना देते हैं और सोचते हैं क्वेश्चंस बहुत टफ है. क्वेश्चंस टफ नहीं होते, आपका सॉल्व करने का जो जजमेंट होता है, जो विलिंग पावर होता है, वो लो होता है, इसीलिए क्वेश्चंस आपको टफ लगते हैं. इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अरे शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या नया है? जर्नल से जैसे लेजर में पोस्टिंग करते थे वैसे आपको पोस्टिंग करनी है. चलिए करके दिखा देते हैं. पहले शेयर को फॉरफीट किया तो फॉरफीचर की एंट्री पास कर देते हैं. फॉरफीट किया 2000 शेयर, फुल्ली कॉल्ड अप है, तो एंट्री क्या होगा, जिसमें आपको सिर्फ 40,000 रुपीज मिला. So 51 share capital account debit to share forfeiture to Paulson area. तो पहली एंट्री कितना शेयर है, 2000 शेयर 10 रुपीज. सो 20,000, जिसमें फॉरफीचर यानी मिला कितना 15,000, और एरियर में कितना लिखेंगे, जितना नहीं मिला, यानी कि मिला है 14,000 तो कितना नहीं मिला होगा 6,000. अब उसमें से पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि आपने सारा शेयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ शेयर्स. कितने शेयर्स? ओनली 50 शेयर रीइशू किए. सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. फॉरफीट कितना शेयर किया था आपने, 2000 शेयर. आउट ऑफ द फॉरफीटेड शेयर 50 शेयर वे इशू, सिर्फ 50 शेयर. 50 शेयर 10 रुपए का है, 500. इशू कितना किया गया, 50 × 9 450, बाकी 50 रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट हुआ. उसके बाद थर्ड एंट्री नंबर 3, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए. तो उसके लिए आपको पता है ना, फॉर्मूला लगाते हैं. टोटल फॉरफीटेड अमाउंट 14,000, या वर्किंग नोट में कर सकते हैं 14,000 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स का था, 2000, इनटू फॉरफीट रेशियो कितना कर रहे हैं 50, और अमाउंट यूटिलाइज कितना हो चुका है 50. -50 अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी 300. आ गया आंसर. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 300. तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें आप लोगों ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना सीखा. ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस डाउट कैटेगरी में नहीं आते. पता नहीं आप लोग पढ़ते नहीं है ठीक से. आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट का अकाउंट बनाना देख लो. हाँ, ये कुछ नया है जो मैंने नहीं बताया आपको, देख लो कैसे बनेगा. यहाँ पहला शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है, तो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट तो 22 शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना है 14,000. यहाँ शेयर फॉरफीचर का है डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर 50. यहाँ कैपिटल रिजर्व में कितना है 300, टू शेयर फॉरफीचर सॉरी टू कैपिटल रिजर्व. यानी आप देख रहे हो अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है. कितना बैलेंस बचा है, 14,000 में से 350 गया, 13,650. वाई जो 13,650 बचा है वो कितने शेयर्स का बचा है, जितने शेयर अभी रिशूड नहीं हुए हैं. ये भी आप समझ लीजिए, कंपनी ने सारे शेयर इशू नहीं किए हैं. कंपनी ने 2000 शेयर्स को फॉरफीट किया, जबकि रिशू किया 50. तो 1950 शेयर्स अभी भी रिशूड नहीं हुए हैं. उसका जो फॉरफीचर का अमाउंट है अभी भी बैलेंस है. सिर्फ हम जिस शेयर को रिशू करते हैं उसी से रिलेटेड फॉरफीचर अमाउंट ही कैपिटलिज्म में
ट्रांसफर होता है आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू, मतलब रीइशू करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको हम लोग कैपिटल गेन में ट्रांसफर करते हैं। सो नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन बहुत ही छोटा था। सो आई होप यू मे बी क्लियर ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।